Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we have discussed a straight line depreciation method. Basically, I am here again to giving you the review of this straight line method. Plus, I will share one video in which I will solve this straight line diminishing method in my register, and then I will share with you that how you have to show the solution exactly in your registers. Okay, so don't be that much problematic that how you have to solve. Just it is your first and second class that you people have to understand the theoretical background. Then as we are proceeding towards the calculations, then I'll let you know that how you have to solve. Yesterday I have discussed with you straight line diminishing method. Now what you have to do, bete, this is the formula for the straight line method. And in remember one point to remember, in a straight line method your useful life in given in years, सालों में given होगी, years में given होगी. ठीक है, तो जब मैं एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करती हूँ बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअल का मतलब है एक साल. ठीक है, so whenever I use the word annual, it means it is for the 1 year. एक साल की मैं depreciation calculate कर रही हूँ, and the formula which I use, total cost minus residual value then divided by useful life. ठीक है, here you can write it down. The main residual value is called salvage value also, you must know. ठीक है, TC minus AD is equals to your depreciable cost. ठीक है, then we have discussed, suppose a manufacturing company purchase a machinery 1000, useful life is 10 years. देखें straight line method में हमेशा आपके पास जो life होती है वो asset की years में given होती है, या आपने अपने पास याद रखना है. Residual life of the machinery, residual life of the machinery is 20,000. Now what you have to do, you just simply put this 1000 value cost, total cost minus salvage value, and then you divide it by 10 so that you will get your answer. Further, I have discussed with you this table in which you have to write it down the years. You have to calculate for 10 years. 10 साल के लिए आपको calculate करना है. TC minus SV 100,000 minus 20,000, you get 80,000 your answer, and then when you divide it by 10, so then you will get your answer of depreciation. This is 8,000 for 1 year. ये एक साल की depreciation आप निकालेंगे. Clear? Okay, now I proceed towards the today's lecture. Yes. Here in today's lecture, we have again the theory, and then we will proceed further because in depreciation we have so much theory and so many MCQs for the examination perspective is you can say occur in it. So in every business there are certain assets of a fixed nature that are needed for conduct of the business. Definitely हमारे पास business में different types of assets मौजूद होते हैं, but here for the depreciation we always consider the fixed nature of the assets. So fixed nature में अगर हम बात करें तो बिजनेस के पास होता है फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये तमाम फिक्स एसेट्स हैं. तो एक बिजनेस के पास फिक्स एसेट्स ज्यादा मौजूद होते हैं और डेफिनेटली वो फिर डेप्रिसिएशन भी अप्लाई होगा. Depreciation is the fall in the value of fixed asset. Fall का मतलब reduced है. ठीक है, fall in the value of those fixed asset, either they are usage or a fix of time. A fix means वक्त का गुजर जाना. मतलब कुछ fixed assets ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हमने उनको यूज नहीं किया और वो न्यू हैं, बट अब उनकी लाइफ जो है वो रखे रखे भी खराब हो जाती है. So this is the another theory. Examples are plant, machinery, building, motor vehicles and furniture. For the business perspective, आपके पास ये वाले fixed assets majorly use होते हैं. Special features of the depreciation, basically depreciation is the declining in the value of fixed asset. Definitely अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की थी और वो कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड होके 80 रुपीज रह जाएगी, तो क्या उसकी वैल्यू में रिडक्शन नहीं है? जी हाँ, उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड हुई है, डिक्लाइन हुई है. ठीक है, जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में जो हमारा फिक्स एसिड है वो हर साल सेम डेप्रिशिएट होगा.
अगर वो 2000 में, मतलब सॉरी 2005 में अगर वो 2000 रुपए डेप्रिशिएट हुआ है, तो 2001 और 2 में भी वो 2000 ही रहेगा, ठीक है। दिस फॉल इज ऑफ परमानेंट नेचर, इसकी नेचर परमानेंट है। वंस द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्लाइन, इट कैन नेवर बी रिस्टोर। डेफिनेट सी बात है, एक दफा अगर किसी चीज की वैल्यू गिर जाती है, मतलब वो रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस्ड होना कब है, कि वो मार्केट वैल्यू डाउन नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि वो उसकी यूटिलाइजेशन हो गई है, वो घिस गया है, इस्तेमाल हुआ है, तो वो दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकता। Depreciation is a gradual and continuing process because the value of assets will decline either by constant use or obsolescence or due to expiry of time. ये तीन reasons हैं जिसकी वजह से depreciation हमारे पास apply होता है, या तो उसका constant use होते रहे, या वो obsolete हो जाए, या another way क्या है, उसकी time of expiry आ जाए, means about to dead. Okay. Another point we have, it is not the process of valuation. Basically हम depreciation को valuation में use नहीं करते, but process of allocation. हमें किसी asset को value करने के लिए depreciation नहीं चाहिए होता, but उसको allocate of the cost करने के लिए depreciation को हम use करते हैं। allocate का मतलब क्या है, कि अगर मुझे मेरा एक लाइक यू कैन से लैपटॉप है और उसको मैं पिछले 5 ईयर से यूज कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसकी करंट प्राइस जो है वो उसकी परचेजिंग प्राइस से डिफरेंट होगी। तो उसकी करंट प्राइस को एलोकेट करने के लिए कि अब ये कितने का है, तो मुझे डेफिनेटली उसकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा तो कितना घिस गया है। इट ओनली डिक्रीजेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे एसेट की बुक वैल्यू कहते हैं करंट वैल्यू ऑफ योर फिक्स एसेट्स, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टीसी माइनस एडी इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो जब हमारे पास, और टीसी माइनस एसवी इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये भी याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, टीसी माइनस एडी इज इक्वल टू बुक वैल्यू, टीसी माइनस एसवी इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट। हाँ, हमने बात करी बुक वैल्यू किसी भी एसेट की डिक्रीज हो जाती है, नॉट द मार्केट वैल्यू। करंटली उसकी जो बुक वैल्यू अपनी कम होगी, अब मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, हो सकता है सम टाइम कोई आपकी पुरानी चीज को भी अच्छे पैसों में ले लेता है। उसकी वजह क्या है, इट अगेन डिपेंड अपॉन कि आपकी कमोडिटी का ब्रांड क्या है, उसकी करंट कंडीशन क्या है, और लेने वाले का पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब उसको उसका यूटिलाइजेशन मोड क्या है। दिस टर्म इज ओनली यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंजिबल एसेट्स। डेफिनेटली जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं बेटे, वो सारे आपके टेंजिबल होते हैं, दैट कैन बी सीन और टच, ठीक है। वेट वेट फॉर अ व्हाइल गर्ल्स। वेट। ओके। Yes, then this term is used in respect of the tangible assets. Further, I discuss it is non-cash expense. Non-cash expense means basically it is reducing your cash expenses. Non-cash means definitely once you have purchased it, your value of asset is reducing, not the value of your cash. It does not involve any cash outflow. I proceed towards causes of depreciation. I will go through the one by one the headings. It is a constant use, by expiry of time, and by obsolescence. Due to the constant use of fixed asset, definitely your fixed asset is constantly using. In business operation, the wear and tear arise. Wear and tear means stored food, and which results in reduction of values. The value will be reduced. Expiry of time, there must be expiry of time of every fixed asset. The value of many assets decreases with the passage of time, even if they are not being used, whether हम उसको use करें या ना करें. Natural forces like rain, winds can be diminish your asset, can be destroy and ruin your asset. Okay, so like आप लोग की अगर राइस की कहीं एग्रीकल्चर हुआ हुआ है और वहाँ पे winds और rain spoil कर देती हैं, तो वो जो आपका राइस की स्टोरेज है वो डैमेज हो सकती है. By obsolescence, it means उसकी currently values जो हैं वो about to end है. Now what you have to do, you have to basically sometimes new inventions are improved, then techniques and the old assets will become useless. Okay. uh, Wait again. Okay, then we have by accident, by depletion, and by permanent use. Wait.
Wait, please. We have, yes. Then by accident, sometimes a machine may be destroyed due to fire, earthquake, or you can say it is for a different reasoning. It is then for earthquake and floods. Yes, when I talk about the earthquake and flood, definitely your depreciation is affecting your fixed assets also. If I told you that fire and earthquake and such floods are definitely damaging your fixed asset. If I talk about the depletion is definitely, it is reducing or decreasing your fixed assets value, like your mines, your oil wells are due to the constant working. Like it is depletion. Basically, it talks about your national resources. We have depreciation. Depreciation यूज होता है आपके फिक्स एसेट पे. डिप्लेशन हमारे पास यूज होता है नेशनल रिसोर्सेज पे. तो whenever your national resources are reducing its worth, like अगर आपके पास minerals हैं, कैल्शियम है, सॉल्ट है, इसकी माइंस अगर रिड्यूस होती हैं तो उसको हम डिप्लेशन का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, अगर कंटिन्यूसली आपकी मार्केट प्राइस फॉल हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, चेंजिंग होती है, वो भी ड्यू टू कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन है. ठीक है. Importance of depreciation, I am going through just headings right now. For asserting the true profit and loss, definitely depreciation अगर हम किसी भी एसेट पे चार्ज नहीं करते तो हम उसको उसकी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का मकसद होता है कि हमें ये पता चले कि आपका फिक्स एसेट कितना रिड्यूस्ड हो गया. अगर आप कभी भी यानी जो आपने एक लैपटॉप अगर 50,000 का लिया है और आप उसको 10 साल तक भी ये कहते हैं कि मेरा ये लैपटॉप 50,000 का ही करंट वर्थ में है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. कोई भी फिक्स एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होता है. Showing the true and fair view of the financial position, it means your financial position is basically based upon the truth value of your fixed assets. Okay. To ascertain the accurate cost of production, definitely your cost of production is based upon your depreciation. Then we have to provide the funds for replacement of asset. To calculate the profit and loss, we must mention the how much amount of your fixed asset is depreciated. इधर यहाँ पे देखें जरा एक सेंटेंस है, the amount of depreciation is retained in the business, दोबारा हासिल हो जाना, and later on used in the replacement. Suppose आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है बेटे, ऐसा ही है ना. तो जब आप उसको रिप्लेस करते हैं, इसका मतलब वो कंप्यूटर आप दोबारा यूज कर सकते हैं. तो ये वो वाली बात हो रही है कि हमारे पास कोई भी मशीनरी अगर उसकी मेन गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया जाए तो वो दोबारा रीयूज कंडीशन में आ सकती है. ठीक है. टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल. ठीक है. हमें उसको जो हमारी डेप्रिसिएशन है हम उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस. इनकम स्टेटमेंट में आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लिखते थे उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में, और जब हम बैलेंस शीट में जाते थे तो हम फिक्स एसेट्स में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे और फिर बुक वैल्यू की वैल्यू आप लिखते थे बैलेंस शीट में. क्लियर. अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एज द प्रॉफिट शोन विल एक्सीड द एक्चुअल प्रॉफिट, द एम्प्लॉय में डिमांड bonus or increase in wages, we will have to pay more taxes. Clear. Then these are the factors. I am escaping this right now. I am moving towards the calculation of depreciation. Wait again. You have to wait for a minute. I don't know what happened. Wait, girls.
yes जी. Come towards this calculation side, we have depreciation example. Machine is purchased 60,000, 4,000 are spent on freight कहते हैं अपने transportation को, ठीक है. Then for the transportation I applied 1,000, 4,000 for the transportation and 1,000 for installation. What I have to do, मेरी machine मैंने purchase की है 60,000 की, उस पे transportation charges किए हैं 4,000 and installation charges हैं 1,000. So now what I have to do, the estimated life is useful is 10 years. The scrap value end of the useful life is 8,000. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है, वो सारी चीजें जो आपने मशीन की कॉस्ट पे एक्सपेंस करी हैं आप उनको लिखेंगे. मशीन परचेज कॉस्ट इज 60,000, आपने 60,000 की मशीन परचेज की है. देन योर फ्राइट इज 4,000, 4,000 यू हैव मेंशन ओवर हियर. 1,000 इज इंस्टॉलेशन. ये सारे जो फ्राइट है और इंस्टॉलेशन है बेसिकली आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है. यस्टरडे मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि हम मशीन की कॉस्ट के अंदर उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं, ठीक है. वो सारे एक्सपेंसेस जो कि मशीन को रन करने में काम आते हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिससे लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्रीज होती है. हमने मशीन तो परचेज की थी 60,000 की, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमने उसको फ्राइट चार्जेस प्रोवाइड करे हैं 4,000. दैट विल बी एड. देन हमने उसको किसी खास जगह पे इंस्टॉल करवाया है, प्लेस करवाया है कि इस जगह इस मशीन को हमें लगवाना चाहिए. दैट विल बी योर 1,000. So your total cost 60,000 plus 4,000 plus 1,000 is your 65,000. Clear? Then minus 8,000. जो भी आपके 8,000 है वो आपकी किस चीज की वैल्यू है बेटे? स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है. तो हम अपनी रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को हमेशा माइनस करते हैं. फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं टोटल कॉस्ट. तो ये सारे जो तीनों आइटम है ये आपके टोटल कॉस्ट बन रही है. 60,000, 4,000, 1,000 is your total cost. Clear? Minus salvage value is your residual value. Divided by 10. 10 is your numbers of years. Your answer will be 5,700 to be charged every year. आप लोग अगर मेरे साथ कैलकुलेटर्स पे इसको यूज मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा इस चीज को समझ में आएगा. डोंट अवॉइड योर कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ करते रहिए, ठीक है. सो वंस यू आर डूइंग योर कैलकुलेशंस विद मी, सो यू पीपल विल बी केपेबल इनफ. क्लियर? देन इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से गो थ्रू कर लें. कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस फ्राइट चार्जेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू इज योर डेप्रिसिएशन. बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड का हमने फॉर्मूला क्या याद किया था? टीसी माइनस एसवी. सो टीसी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय यूएल, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, सालों में गिवन होगी. और अगर उसमें मंथ गिवन होंगे, सपोज मेरी ये मशीन अगर मैंने मार्च में खरीदी होगी तो मैं इस 5,700 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 12 करूंगी. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. इफ आई परचेज दिस मशीन ऑफ रुपीज एट द टाइम ऑफ यू कैन से मार्च, अगर मेरी ये मशीन मार्च में परचेज हुई है तो मैं यहाँ पे मंथ अप्लाई करूंगी 5,700 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12. क्लियर? यहाँ पे तो हमारे पास मंथ गिवन नहीं है. Then we have methods of providing depreciation. अच्छा, हमारे पास depreciation के कितने ways हैं, कितने मेथड हमारे पास मौजूद हैं, वो हम इसको डिस्कस करते हैं. वेट, we have methods: straight line, written down value, annuity value, depreciation fund, insurance policy method, revaluation method, depletion, machine hour rate. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं जब भी बात करती हूँ बेटे, सो स्ट्रेट लाइन मेथड इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला. हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड की जब बात करते हैं तो वो यूजली ईयर्स में गिवन होती है. डेप्रिसिएशन फॉर सो मेनी ईयर्स, डेप्रिसिएशन जितने भी सालों की हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से वो हमेशा सेम आती है. एज इट नेम शोज इट इज योर स्ट्रेट लाइन. ठीक है. जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलेंगे तो रिटन डाउन वैल्यू मींस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इसको हम डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग भी कहते हैं. तो रिटन डाउन वैल्यू जो है इसके सिनोनिम्स अपने पास लिख लें. इट इज कॉल्ड योर डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग एंड रिड्यूसिंग. क्लियर?
आपके पास एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड और डिक्लाइनिंग मेथड यूज होता है, प्लस आप लोगों के पास बोर्ड एग्जाम्स में वर्किंग आवर इंक्लूड है। अदरवाइज ये जो नेम है, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड एंड डिप्लेशन मेथड, ये आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, बट दिस इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस। इसकी कैलकुलेशन आपके बोर्ड सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। First two methods are further explained. This is what I am telling you right now. There is straight line method and diminishing methods are very much useful. ठीक है, ये सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में यही आते हैं, और आपके बोर्ड सिलेबस में हमारे पास 5 मेथड्स हैं, जिसमें से स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मोस्ट रिपीटेड मेथड है। बिसाइड दिस वी हैव वर्किंग आवर, जिसको हम मशीन पर आवर पर रेट भी कहते हैं, और हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड की डेफिनेशन पे आ जाती हूँ। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके सिनोनिम्स हैं। समटाइम एग्जाम में आपको ये बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन से नहीं सॉल्व करें, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से यूज करें, तो आपको इसके सिनोनिम्स पता होने चाहिए। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम कॉल करते हैं। सो स्ट्रेट लाइन मेथड हैज सम सिनोनिम्स नेम, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। Because under this method depreciation is charged as a fixed percentage on the original cost of the asset। ठीक है, फिक्स परसेंटेज। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड बाय परसेंटेज भी सॉल्व होता है और बाय फॉर्मूला भी होता है। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है करंटली, वो सिर्फ बाय फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। The amount of depreciation remains equal from year to year। ठीक है, हर साल की सेम रहती है। This method is also known as equal installment method और fixed installment method। ये इसके जो names है ना बेटे, ये आपने अच्छे अपने पास से नोट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन मेथड के जो नेम्स हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर? अच्छा, एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ, जब हम पूरी मशीन को डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? इट विल बी जीरो। ठीक है, मतलब आपकी मशीन अगर पूरी तरह डिमिनिश हो जाएगी, पूरी तरह हमारे पास डेप्रिशिएट हो जाएगी आपका फिक्स एसेट, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट क्या आएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्लियर? यस, दिस इज द फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले को दोबारा आपके सामने डिस्कस करने लग रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग में, सॉरी, यहाँ पे ई आएगा बेटे, DEPRECIATION। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, या इसको हम यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट भी कहते हैं। हमने एग्जांपल, ये एग्जांपल मेरे साथ ही सॉल्व कर लें आप लोग काइंडली। कल भी आप लोग का होम असाइनमेंट था टू सॉल्व द वर्क एग्जांपल। आज भी आप लोगों का जो होमवर्क है वो वर्क एग्जांपल्स को दोबारा सॉल्व करना है। Cost of fixed assets 100,000, then scrap value 15,000, estimated life कितनी है? 10 years। मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी, अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस इन योर गूगल क्लासरूम। सो काइंडली उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करके मुझे आज ही उसके आंसर्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सो दैट आई विल बी केपेबल इनफ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं। गूगल क्लासरूम देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के असाइनमेंट पोस्ट करूंगी। इट इज वेरी इजी, यू नीड टू सॉल्व 3 to 4 or 5 क्वेश्चंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो डेप्रिसिएशन 100,000 माइनस 15,000, या आंसर इज 85,000 डिवाइडेड बाय 10। 8,500 इज पर ईयर, एक साल की निकाली, इट इज योर एनुअल। यहाँ मैं एक लाइन और ऐड कर दूं एंड में, द मशीन परचेज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 10। तो अब आप क्या करेंगे? अप्रैल 10 में वो परचेज हुई है, तो हम अप्रैल से इसके मंथ काउंट करते हैं। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स आ रहे हैं। तो मैं 8,500 की जो आंसर है, ये एनुअल है ना, मैं मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करूंगी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने मशीन परचेज करी तो मैंने उसको 12 मंथ्स तो यूज नहीं किया, मैंने तो उसको 9th मंथ यूज किया है। क्लियर? सो 8,500 एक साल की डेप्रिसिएशन है। जब मैंने यहाँ पे मंथ अप्लाई कर दिए, मैंने मशीन अप्रैल में खरीदी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करूंगी। क्लियर गर्ल्स? होप सो you understand this topic very well. I really try to put all my efforts. Kindly practice these questions also.